success is nothing more than doing more than what you can do well and doing well whatever you do. I, sir, and the students of class 12 extend a warm welcome to you all. Today is the day of a celebration devoted to you and your admirable performance. We extend our heartiest congratulations to you and your spirits. You have the creativity and determination to do whatever you dream. We hope you feel proud today and confident in your ability to rise to your next challenge. Colin Powell said that there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. And you guys have shown this to us. Every day when we enter the future, we see your names in bold letters in the walls, hoping we could see yours in the same way. Not a day goes by when Sir does not mention how proud he is of you all, and we have seen it with our own eyes, how his eyes sparkle when he talks about you all. We have mentioned everything from you all doing questions for all those tuition parties to you all following the strategies we gave. You truly have set a benchmark for us and you do deserve all the success and joy you have received. We have heard your stories from Sir's point of view and several times and are pretty curious to know it from your point of view too. Therefore, you all are requested to come and receive a sovereign from Anil Sir and share your views when your name is mentioned. उगते सूरज की आंखों में कितने गहरे सन्नाटे हैं। उगते सूरज की आंखों में कितने गहरे सन्नाटे हैं। उन राहों का अंत सुखद है जिनमें कांटे ही कांटे हैं। You guys were simply not aware of how difficult the art was to finish was. Here to the brave आरुष Yeah, my bag was moving, but one thing. Some of you might have heard about me and some of you might have not. So now I'm going to share my story, how first I developed a phobia of physics, and despite of that I got 97 marks in board exam. Right? So when I passed my 10th, I changed my school and I came to RL, क्योंकि वहाँ पे competition कुछ कम था. So when I came here, यहाँ पे मेरे जैसे लेवल के बहुत सारे बच्चे थे, और यहाँ के टॉपर्स कुछ और ही थे. मतलब वहाँ पे मैं टॉपर्स में था, लेकिन यहाँ पे आके मेरे इस लेवल के बहुत सारे बच्चे थे, तो फ्रॉम अ लाइन बैक आई जस्ट केम स्ट्रेट टू ग्राउंड। अब वो मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो वाली रिस्पेक्ट अब यहाँ पे नहीं मिलती थी। पूरे साल ये हुआ था, मैथ्स मेरे लिए थोड़े मतलब ठीक थी, केमिस्ट्री भी सही थी, लेकिन फिजिक्स हुआ कि जहाँ मैं ट्यूशन गया था वो सर बहुत लेजी टाइप के थे। तो यहाँ पे मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, पर वहाँ पे बस फर्स्ट चैप्टर भी था, तो मेरे 5 चैप्टर्स हुए नहीं। और जब मैं एग्जाम में गया बस
somehow I just managed to pass, लेकिन वो अच्छे रैंक नहीं आ पा रही थी। तो और पूरे साल ये हुआ, मतलब मैं वहाँ पे एवरेज वाले भीड़ में आ चुका था, तो वो बहुत बेकार लगता था। फिर 12th स्टार्ट हुई, 10th सर के, और पता नहीं कैसे बट somehow सर पता नहीं how, but somehow sir found that thing in me which I wanted someone to find, कि कोई मतलब वो चीज़ देख ले कि मैं अभी मतलब ठीक ठाक, वो सर ने देख लिया, पता नहीं कैसे। तो एक बार he called me in the lab और इन्होंने मुझे ये कहा कि तू मेहनत कर और तू 100 मार्क्स लेके आएगा फिजिक्स में। वो मेरे लिए मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरे को एक फोबिया हो गया था फिजिक्स का, बट स्टिल मैंने फिर वो काम स्टार्ट किया। मतलब वहाँ से एक ये आया कि यस कोई मेरे पे अब यकीन कर रहा है, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। फिर सर ने और को भी कहा कि और हमारे सर थे तिवारी सर, कार्तिक सर, उन सबको इन्होंने कहा यस हिज नेम इज आरुष एंड ही हैज दैट कैलिबर दैट ही कैन मेक कॉम्पिटिशन टू आवर टॉपर्स। तो दैट रियली वर्कड आउट फॉर मी। मतलब मुझे उससे ये हो गया कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं फिर से टॉपर्स में आ सकता हूँ। तो मैं एक भीड़ में आ चुका था। फिर बाकी और भी जो थे हमारे टीचर्स, उन सब ने भी मुझे सेम सपोर्ट किया कि हाँ ये कर सकता है। बहुत बार क्या होता था कि क्लास में मैं आई वाज द बैक बेंचर, मैं लास्ट सीट पे बैठ के ना पढ़ता था, तो बहुत बार ये मुझे देखते थे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये मुझे कभी रोका नहीं, जो करना कर ले। तो वो सपोर्ट बहुत ही मेरे लिए काम आया। ये सेम हेल्प सर ने और भी कुछ बच्चे थे जिनकी हेल्प की थी, बट ये अब मेरे में एक अच्छी बात थी कि मैंने उस चीज़ का एक फायदा ले लिया एंड इट वर्क फॉर मी। बट मींस मैं ये नहीं कह रहा कि सर ने तो ये पढ़ाया वो पढ़ाया, मैं ये नहीं कह रहा, बट मोर देन दैट द इमोशनल सपोर्ट दैट ही गेव मी रियली वर्क फॉर मी। ही शोड द कॉन्फिडेंस दैट यस आई कैन पुल इट ऑफ, और एंड इवेंचुअली आई गॉट 97 मार्क्स इन फिजिक्स। ये मेरे बहुत बड़ी बात थी। हुआ कि जब मैं अपने मैथ्स एग्जाम देके आया था, मैंने बोल दिया था कि मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे 100 आए। केमिस्ट्री में मैंने कहा था मेरे 90 आएंगे, वही हुआ। बट फिजिक्स में मतलब ये था कि शायद मेरे 90 भी ना आ पाए, और मेरे 97 आ गए। ये मेरे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ थी जो हो गई, और ये सैक्रिफाइस हो पाया। सर ने पढ़ाया इसलिए नहीं, बट वो एक सपोर्ट था जो मेरे को इतने किया, इमोशनली किया, यस कर सकता है। तो यस दैट रियली गॉट फॉर मी। थैंक्स। वंशिता दी,
Balikati, we want you to say few words. हेलो एवरीवन, मैं स्पेशली सर का कंट्रीब्यूशन बताऊंगी कि उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया है। स्पेसिफिकली हेल्प मी इमोशनली ओनली, क्योंकि फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट नहीं होता है और एवरीवन जो 12th और 11th में एंटर करते हैं वो सच में एक काफ़ी एनालिटिकल और डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। दो सर वाज नॉट टीचिंग अस इन 11th स्टैंडर्ड, बट रियली उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है। हर क्वेश्चन में, हर सोल्यूशन में जो हमें प्रॉब्लमैटिक लगता था उन्होंने हमें हेल्प किया। एंड यस, इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस, सो ही इज अ मेंटर। थैंक यू सर। Here's the people who give their 100% and achieve their goals with kind. So welcome Naman Bhaiya. क्या बोलूं मैं, सब तो आज उसने बोल ही दिया पर नहीं, अनिल सर जो है एक टीचर के अलावा एक दोस्त भी है। अनिल सर ने इतना मेंटल सपोर्ट किया, बोल भी नहीं सकता मैं कुछ, मतलब अनिल सर बेस्ट है। अनिल सर के जैसा स्कूल में तो कोई मेरे को मिला नहीं, अभी भी कोई दिक्कत वगैरह होती है तो सब मस्त है सर, मतलब थैंक यू सर। समीक्षा जी, आई नो मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे,
और मैं बोलने भी नहीं वाली, बट या मैं सर को बोलना चाहती हूँ, सर थैंक यू सो मच। सर हमेशा सपोर्ट की तरह, सर हमेशा साथ में रहे हैं। क्लास में कभी मॉरल डाउन हुआ कि नहीं हो पाएगा शायद, और बहुत बार ऐसा हुआ, एक आध टेस्ट ऐसे थे जहाँ मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, बट ही वॉज देयर, उन्होंने कभी मुझे डिमोरलाइज नहीं होने दिया, एंड ही ऑलवेज हेल्प मी। सो थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। खुशी दी, खुशी दी। Hello everyone. First of all, I want to thank sir and all the juniors for such a wonderful ceremony. Thank you everyone. And I would like to thank Anit sir because इन्होंने इतना इमोशनल सपोर्ट दिया। मुझे तो लगता था, मैं फिजिक्स से इतना डरती थी पहले कि नहीं हो पाएगा, पर सर ने कहा कि नहीं हो जाएगा, स्टार्ट तो करो। And I'm blessed to be a student of such a hardworking and dedicated teacher. Thank you sir. प्लीज वेलकम हियर सार्थक भाई। आदित्य दुबे। हेलो, थैंक यू सो मच सर, हमेशा इतना फेथ दिखाने के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए कि आज इतने अच्छे मार्क्स आए। बस हमसे ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करने के लिए सर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। खुशी बात।
वैसे आज मैं खुशी बनकर ये मैं ले रही हूँ। मेरा नाम एक्चुअली छुटकी है, जो मुझे अनित सर ने दिया है ये नाम। इन्होंने जो किया है शायद मैं लाइफ टाइम इनका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। इन्होंने मुझे स्टूडेंट नहीं बेटी माना, अब तो शायद बहन मानते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं बता नहीं सकती बट इन्होंने जो जो किया है वो शायद किसी के लिए नहीं किया। सगी बहन के लिए बिल्कुल जैसे एक भाई करता है बिल्कुल वैसे ही किया है इन्होंने। सबसे पहली स्टूडेंट हूँ मैं इनकी पूरे रुद्रपुर में। सबसे पहले ये मेरे से ही मिले थे और आरजू से। आरजू का नाम इन्होंने गुड़िया रखा और मेरा छुटकी। और अब इन दोनों की बहन है, क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं थी तो ये बहुत रोते थे इसलिए। Thank you for such a wonderful afternoon. Thank you so much sir for providing support. कुछ लोग हाथ रेस कर रहे पीछे। I think success doesn't come easily. Just there are few words I want to say to everyone here. Okay, I am no genius and मुझसे literally बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी बहुत तक। So studies is something जिसमें तुम जितनी मेहनत करो, जितने बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई से, उसमें इतना कहूँगी कि just put in the effort and you score great. Thank you. हो गया हेलो एवरीवन। सो मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं ट्यूशन में आई वाज द ओनली वन जो होली चाइल्ड से थी और मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो थे वो आरएन के थे। सो एक तो वो कॉम्प्लेक्स की सब आरएन के हैं, वहाँ से शुरू हुआ। एंड सेकेंडली मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। सो माय टीचर्स उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो मेरे से बहुत ज़्यादा। इनिशियली जो मेरी ट्यूशन थी वो थोड़ी इरेगुलर थी, मैं कहीं और पढ़ती थी। फिर उन सर ने पढ़ाना छोड़ दिया तो मैंने भी फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया। फिर अनित सर से मिली थी, मेरे घर के साइड में ही पढ़ाते थे तो अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया इनसे।
फिर मेरे को जैसे आयुष ने बोला वही कॉम्प्लेक्स मेरा था कि कोई समझे दैट अप टू अ लेवल मुझे आता है और उसके आगे मुझे पढ़ाया। तो किसी बच्चे से सर को पता चला कि मैं हेड हूँ स्कूल की, तो देन ही कंसिडर्ड मी एंड ही टॉट मी, और इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि 100 भी आ सकते हैं। तो स्कूल के टीचर्स का जो बर्डन था वो इन्होंने खत्म करा एंड से अच्छे मार्क्स आ गए। लक्षिता दी। ये मुझसे कह रहे हैं कि हंस लो, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ, उल्लू देखा उल्लू, वो कितना भी खुश रहे उससे भी लगता है। So I would like to thank sir for always being the constant support system for each and every one of us and pushing us to do the best out of ourselves always. Thank you so much. Shubham Bhaiya. चट्टान भी मिलते हैं, जो शहरों में हो तो मुझे हुनर अगर माली में हो तो गुल गुल भी खिलते हैं। सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन स्टेज एंड टीच यू वर्ड। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज? हाँ, वही बात। देखो, अभी ये इधर है, पता नहीं क्यों छोटी सी चीज है, आराम से। तो मेरे कहने का मतलब है, ओ माय गॉड, नहीं सुनो।
कहने का ये मतलब है कि बड़ा अच्छी सी बात है। बात ये है कि हर चीज बड़ा कठिन सा होता है। हर चीज कठिन सा इस सेंस में होता है कि जनरली अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रखा हुआ था, मैं तो उसको भूल गया कहाँ गया वो, दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो गया है। कमजोर था भी। देखो कोई बच्चे तो मजाक बना रहे हैं, देखो गोबर। और एक आध नाम किसी को याद हो हमारा? गधा, गोबर। ये जो नए नए आए हैं ये भी कुछ नया नया नाम रखा है मैंने ना मेरा, गधे का गोबर। मतलब बड़ा प्योर होता है वो, बहुत प्योर फॉर्म में होता है अगर उसको सही नहीं करो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी बच्चे अभी आए और जो भी बच्चे मैं देख रहा हूँ जिन्होंने मेहनत करी, तो सबसे पहली चीज जो इस समय क्लास 12 में है, थोड़ा सा सीरियस बात कहता हूँ, आगे तो मजाक जिंदगी में चलनी है, जो इस साल क्लास 12 में है और जो पिछले साल क्लास 12 में थे, थोड़ा सा अंतर है उनमें, बस थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर ये है कि वो पिछले साल पास हो गए हैं और ये इस साल आए हैं। पहली बात। दूसरी छोटी सी बात ये है, जो लास्ट ईयर के बच्चे थे हमारे, अब जो चीजें मैं हो सकता है कि कुछ कमियां नहीं हो, तो माफी चाहूंगा आप सब लोगों से, कुछ मेरी तरफ से कुछ मैंने उसमें जो लिखा है फोटो फ्रेम पे, तो हो सकता है कि थोड़ी इंग्लिश कमजोर है हमारी, तो सेंटेंस इधर उधर हो गया हो, कुछ सेंटेंस अगर इधर उधर हो गया हो तो माफी चाहूंगा। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो लास्ट ईयर के बच्चों ने करी, या 2006 आज से लगभग जो 2021 आ गया तो 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते, लेकिन जो बैच था लास्ट ईयर का, अगर मैं लिस्ट बनाऊं अपने सबसे अच्छे बच्चों और अपने सबसे अच्छे बैच की, क्योंकि जो आज मैं जो भी कर रहा हूँ ये उस मेहनत के लिए, उस लेवल की मेहनत के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये तुच्छ है। उस लेवल की मेहनत के लिए, उस कैटेगरी के लिए जो भी मैं कह रहा हूँ और कर रहा हूँ वो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ, और मेरी औकात नहीं है कि मैं कह पाऊँ जिस लेवल की मेहनत की गई। और ये बिल्कुल सच है कि जिस लेवल की मेहनत करी, जिस तरीके से सारी स्ट्रेटजी बनाई, जिस तरीके से सारी बातों को माना, शायद 2006 से लेकर शायद ही कभी किसी बैच ने इतना माना हो। पता नहीं क्यों माना। मैं तो यहाँ नया नया आया था रुद्रपुर में, तो मुझे लगा कोई बात मानेगा भी मेरी कि नहीं, कौन जानता है कहाँ से क्या है, क्यों मानेगा कोई मेरी बात, क्या जरूरत लगी है किसी की बात मानने की, क्यों माने मेरी बात। मैं कह रहा हूँ पढ़ो, नहीं पढ़ते, कर लो जो करना है, लेकिन पता नहीं क्यों माना। और इस तरीके से माना कि मेरी खुद की पिछले जितने भी साल का जो भी है उसमें सबसे अच्छा जो किया इस बच्चों ने किया, इन बच्चों ने। सबसे अच्छा का मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, सबसे अच्छा का ही मतलब सबसे अच्छा होता है। अगर लिस्ट बनती है सबसे ऊपर मार्जिन लाइन के नीचे जो पहला नंबर होता है उसमें जो लिखा जाता है उसी को सबसे अच्छा बोला जाता है। जो सेकंड नंबर पर आ गया वो सबसे अच्छा कहाँ रह गया। इसीलिए जो सबसे अच्छा बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मार्जिन के बाद जो नंबर है वो पहला है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, तुम्हारे लिए को तो पता नहीं कि है भी कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है। प्राउड मतलब मुझे फील होता है इस चीज़ को कि जब मैं जाके बताता हूँ, कभी भी बोलता हूँ किसी के सामने खड़े होकर चाहे इस तरीके का, तो रेंडमली मैं बोलता रहता हूँ, मैं तो बोलता बहुत हूँ, ऊपर से तो मैं बोलता रहता हूँ इस चीज़ को कि
लगभग इसी बात को मैं आगे ले आता हूँ सबसे पहले कि मुझे एक्साइटमेंट रहती है बताने की कि देखो ऐसा भी है, ऐसा भी है। इस साल भी जो बच्चे हैं ये तो बैठे हुए हैं, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा कि मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी चिपकना है दीवार पे कि नहीं, समझे? तो सिंपल सी बात है कि बड़ा अगर हमको सीख सके, मैंने तो तुम्हें लोगों से बहुत कुछ सीखा, यानी सब कोई सब कुछ से सीखता है, मैंने तुम लोगों से भी बहुत कुछ सीखा और शायद वो याद भी रख पाएंगे हम लाइफ टाइम, भूलते तो नहीं हैं, लेकिन इतना अच्छा सा था, इतना कुछ तुमसे सीखा मैंने जो सिखाया। तो कहने का ये मतलब है नॉर्मल कि अगर एक उस तरीके की बात करूँ, एक इंटीमेसी होती है ना किसी की, पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंटीमेसी, अपनापन, तो अपने आप होती है वो। तो जो ये 2019-20 का बैच था, तो ये पूरा जो इस तरीके से रहा कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इतना था कि क्या कहते हैं उसको, फैमिली मेम्बर टाइप। कोई बच्चा कभी भी कुछ कह रहा है तो ठीक है, मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि चलो चलो तुम ये कह रहे हो, हाँ तो ठीक होगा, तुम ये कह रही हो तो ठीक होगा, अच्छा तुम ये कह रहे हो तो हो सकता है ठीक ना हो या ठीक होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि समझ पाऊँ। कभी कभी मैं नहीं भी समझ पाता हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं सारी बातें समझी जाऊँ, तो कोशिश करता हूँ। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं समझा सबको, इंडिविजुअली हर बच्चे को समझने की कोशिश करी जहाँ तक मुझसे हो पाया। और मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, एक तरीके से देखा जाए जो बच्चे बोल के गए तो हाँ वो तो अच्छा लगा, तो लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे जो लगता है मैं आपको ना नो सर, नहीं है। कोशिश तो काफ़ी करी हमने करने की, पता नहीं मैं उस कोशिश में सफल हुआ नहीं हुआ, क्या था पता नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है बच्चे, अब आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अलग डिग्री करेगा, कुछ भी कहीं जाओगे आगे, कुछ ना कुछ बढ़ोगे आगे लाइफ में। तो छोटी सी बात याद रखना, मन करे तो, नहीं तो उसको रिसाइकिल बिन में डाल देना, कि पूरे लाइफ टाइम एक होता है जिसको कहा जाता है ऐश्वर्य, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं उसको नेम एंड फेम। कोशिश करना कि ये कमाना, क्योंकि इससे बढ़कर शायद इस दुनिया में कुछ है। उस दिन सफल हो जाओगे जिस दिन लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देके दूसरे को तुम्हारे रास्ते पर चलने को कहना शुरू कर देंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। जब आज तक करते आए तो अब आगे क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप इजीली कर सकते हो। जहाँ तक मैंने आपका एफर्ट देखा है, एफर्ट ऑफ जो लेवल ऑफ एफर्ट है, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मुझे लगा। इतने सारे बच्चे मुझे जानते हैं, मैं इतने सारे बच्चों को जानता हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जो लेवल ऑफ एफर्ट बोलते हैं, जो मुझे फील हुआ, जो मैंने देखा, मैं जनरली जब बात होती थी, कभी स्कूल में बात होती थी, मैं नया नया आया था, तो एक
स्कूल के में कुछ था। मैं जब नया आया था 4 मार्च को स्कूल ज्वाइन किया आर्यन, तो बहेड़ी जो एक जगह है यूपी में, बॉर्डर है, छोटी सी जगह, बरेली की तहसील है। तो पूरे आर्यन में बहेड़ी को जानते नहीं, तो बहेड़ी की चीज़ जो होती है उन्हें लगा खाने की चीज़ होगी। हाँ, पूछ रहे थे, किसी को बताते थे कि कहाँ से आए हो, तो बहेड़ी बोला तो 5 बार उसको रिपीट करवाते थे, बहेड़ी गूगल पे सर्च कर लो, कहीं मिल जाए तो तुम मुझे बता देना, ऐसी जगह है वो। तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, एक आध लोगों ने थोड़ा सा अच्छे शब्दों का यूज भी किया हमारे लिए, वो भी अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि हमें पता चला कि हमारी औकात क्या है, हमें बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन हमने सोचा कि चलो अच्छा है, पता चलते रहना चाहिए बीच बीच में। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं जिसके लिए आया हूँ, जो करने आया हूँ, बिल्कुल नई जगह है, सब कुछ नया नया है यहाँ, बड़ा अच्छा सा है सब कुछ। मैंने बच्चों के अंदर जो कैलिबर देखा इस चीज़ को, मैं लगा नहीं कि कहीं और था, जहाँ तक मुझे लगता है, और लगा भी मुझे। इसीलिए मैंने कुछ बातों को नेगलेक्ट किया, कुछ बातों की तरफ बढ़ा। फिजिक्स लैब में बैठा रहता था, नए नए में तो किसी से कोई बोलना चलना ही नहीं, ना कोई मुझे जानता था, ना मैं किसी को जानना चाहता था। अकेले बैठे पड़े वहाँ पे, कभी कुछ ऐसे धीरे धीरे सिस्टम में आते गए। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि अब बात होती थी टीचर्स के बीच में, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ। तो 12th ए और बी, पहले 12th ए को पढ़ाता था, बाद में बी में गया हूँ मैं जुलाई में, 21 जुलाई से। तो उतना टच में नहीं थे हम किसी बच्चे के, लेकिन जब भी ऐसी बात होती थी, लेकिन मैं एक आध क्लास लेके आया था 12th बी में भी, 12th ए से भी। तो हमेशा जब भी बात होती थी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं नया नया आया था, तो ज़बरदस्ती है ना कि पूछो वाली बात है कि एक आध सब गलत तो बोल के दिखाओ। पता ही है, जो नया आदमी आया होता है उसे आदमी गलत बोलवाना चाहता है, चलो एक बार गलत झूठ बोल के दिखाओ इन बच्चों के बारे में। तो मैं ऐसा लगता है नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है। जबरदस्ती 4 ऑप्शन देते थे, चारों गलत वाले, उसमें से सिलेक्ट करो, मतलब चोरों में बड़ा चोर। फिर मैं सिलेक्ट ये करता था कि उन चारों ऑप्शन को किनारे हटाता था, मेरे जो मन में होता था वो बोल देता था कि नहीं साहब, आपको जो गलत लग रहा है ऐसा नहीं है, ये बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो करके दिखाएंगे शायद लास्ट ईयर तक आपका जब से स्कूल बना है तब से नहीं किया हो किसी ने। हमेशा हर मीटिंग में, हर टीचर से, प्रिंसिपल से जितनी बार बात होती थी, किसी भी लेवल पे बात होती थी, हमेशा मेरे सेंटेंस होते थे कि भैया ये स्टूडेंट इस तरीके का सेट करेंगे बेंचमार्क कि अभी तक तो नहीं हुआ होगा, आगे का मैं कोई ऊपर से दे भी सकती नहीं हूँ, जितना देख रहा हूँ उतना जानता हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीदें किया भी सबने, बहुत अच्छा भी था सब कुछ। कुछ सारी चीज़ें ऐसी थी या कुछ सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि जैसे कहा जाए कि उसको एक्सप्लेन हिंदी में क से लेकर 11 तक, और से लेकर 11 तक, और इंग्लिश में ABCD है, ए से लेकर Z तक। उस अक्षर में तो पॉसिबल नहीं, और बाकी भाषाएं मुझे आती नहीं। तो मैं उन शब्दों, उन अक्षरों को जोड़कर कुछ शब्द बनाऊं और कुछ शब्द से उन चीज़ों को मैं अच्छा बोल पाऊँ, तो वो नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप इतना अच्छा, मतलब ये है कि आप लोगों को देख के लगता है इस तरीके का, मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। मुझे आप लोगों से कम तो मुझे आता है, मुझे ये फील होता है कभी कभी। क्या फील होता है, सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई ये बताता हूँ कि मुझे तो खाली फिजिक्स आती है, पता नहीं वो भी सही से कि गलत, झूठ। आप लोगों को मैथ भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आता है, इंग्लिश भी पढ़ा, फिजिकल भी पढ़ा, सब पढ़ा। हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो खाली फिजिक्स पढ़ी। तो कभी कभी मुझे लगता है जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तो कमज़ोर मैं खुद हूँ, उससे कमज़ोर तो मैं खुद पढ़ा क्या रहा हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है, एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। तो जिस हॉल में बच्चा पेपर देने बैठा होता है, उस हॉल में ड्यूटी देने वाला टीचर उस बच्चे से कम जानता है, बच्चा ज़्यादा जानता है। तो जो ड्यूटी जा रहा है उसे क्या पता उस सब्जेक्ट में क्या है। तो यू आर बेटर देन मी।
हम तो सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा पे हैं, आप लोग प्राइमरी हैं। और बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे आए हो। अचानक से मेरे दिमाग में आए कि कुछ पता नहीं क्या ही दिमाग में कि ऐसा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि आप आए, विश्वास किया हम पे। तो कहने का मतलब है बना रहे विश्वास। लाइफ काफ़ी लंबी नहीं होती। कहीं मैंने कल ही परसों पढ़ा था यार, उस पर नहीं होता है, मोबाइल चलाओ तो गूगल आ जाता है सामने, उसमें एक लाइन लिख कर आई थी, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो कोशिश करते हैं, हम भी बड़ी बनाते हैं। आप लोग बना ही चुके हो, यहाँ आए हो, कितने अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए हो सब। मैं तो वो देखता हूँ कि ये जो नंबर तुम लोग लाते हो, इतने इतने नंबर है तुम लोगों के, मैं लाइफ में सब जोड़ दूँ तो नहीं आएंगे। बचपन से लेकर अब तक का पूरे मार्कशीट जोड़ दूँ तो दिक्कत हो जाएगी, तब भी 2-4 नंबर कम ही रह जाएगा। बहुत अच्छा लगता है देख कर। और जो छोटे बच्चे इधर बैठे हैं, दूसरे अभी जो 12th में आए हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ही सही, अगर हो सके तो इस साइड वाले जैसा बनना। कठिन तो बहुत है, बहुत कठिन है इस साइड वाले जैसा बनना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बन जाऊँ। जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बन जाऊँ तो तुम लोगों ने थोड़ी कठिन होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इनके जैसा बन जाऊँ। कोशिश करो और इन्हीं लोगों का नाम रोशन करो, अच्छे तरीके से, जिस तरीके से भी लाइफ में अच्छा करके अच्छी जगह एडमिशन लो, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, एक लेवल सेट करो अपना। पता चलना चाहिए कि हाँ ये वैसा कोई बच्चा था, हम भी जाके 10 जगह बोल पाए। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ है कि कभी कभी ये हुआ, हाँ कुछ बच्चे हमसे नाराज भी रहे, वो हमसे क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछा किसी ने। अब होता यह था कि चलो मैं सारी चीज़ों की सॉरी आज ही बोल देता हूँ। होता क्या था कि क्वेश्चन पूछा किसी ने, भेज दिया व्हाट्सएप पे आज शाम को, रात में 10 बजे, आंसर तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। अब मैंने इसीलिए शुरुआत माफ़ी से करी, आंसर इंस्टेंट चाहिए। मतलब 10 बजे क्वेश्चन आया, आंसर इंस्टेंट। 12:30 बजे क्वेश्चन आया, 12:30 बजे रात में, और आंसर इंस्टेंट चाहिए। 2-2 बजे भी आया और आंसर इंस्टेंट चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, क्योंकि अगर एक बच्चा 5 क्वेश्चन भेज रहा है, 88 बच्चे थे, 98 थे, हर बच्चा 2-3 क्वेश्चन भेज ही देता था, तो 250 क्वेश्चन होते थे लगभग। और हर बच्चा सोचता था कि इंस्टेंट आंसर चाहिए। हाँ, नंबर आते आते थोड़ा टाइम लग जाता था कि किसी का मैं आंसर बता पाऊँ, कभी कभी स्किप हो जाता था, तो काफ़ी डांट भी सुनी हमने, डांट भी पड़ा करती थी, यानी कि हमारे आंसर तो बताते ही नहीं। इंडिविजुअली लगता था कि उस बच्चे को नहीं, ये हमारे आंसर नहीं बताते हो, चलो ठीक है। वो कभी कभी ऐसा हो जाता था हमसे, लेकिन मैं कोशिश करता था कि सबके आंसर का रिप्लाई कर पाऊँ, फिर भी नहीं कर पाता। मैं झूठ नहीं बोला, मैं 250 क्वेश्चन का आंसर देता था, नहीं कि दे पाता था। 15-20 का आंसर दे दिया होगी बात। और इस साल भी ऐसे ही होता है, कई सारे बच्चे हैं यहाँ भी बैठे हैं, 2-4 क्वेश्चन भेजते हैं और कहते तुरंत आंसर दो, मतलब विदिन 5 मिनट। अब मैं ऐसे मोबाइल को ऐसे लेके, वो ऐसा समझते हैं ऐसे का, तो उसे लिए सॉरी बोलता हूँ। कुछ पुराने बच्चों को, नए बच्चों को तो अगले साल बोलूँगा, मन करेगा तो उनसे सॉरी बोलता हूँ कि कभी कभी आंसर का रिप्लाई ना जा पाया हो तो मुझे माफ़ करें। टाइम पे अगर रिप्लाई नहीं कर पाए हो तो उम्मीद करता है करेंगे, और बहुत अच्छा करोगे, और बहुत अच्छा किया है, और हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने को है तुमसे, और तुम लोगों ने बड़ा बढ़िया किया सब कुछ, और अच्छा लगा आ जाए तो
सब कुछ अच्छा है। खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ और लाइफ में जितना अच्छा तुम कर सकते हो, जितना अच्छा उतना अच्छा करते चलो और बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, उसमें कुछ कमी की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि पहले नहीं थी, अब होने के चांसेस तो और कम हो गए हैं। ठीक है, तो कोई मुझसे फिर भी कोई गलती हो तो सबसे हाथ जोड़ के सॉरी है बच्चों से ही अपने। तो बड़ा अच्छा लगा था हम लोग आए, तो अभी काम करते हैं, बस आप कुछ खा पी लेते हैं। बहुत बोल लिया मैंने, तो शायद दिमाग में आ रही होगी थोड़ा कम बोलो बहुत बोला इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब कुछ खाते पीते हैं, लंच चाहे कोई चीज़ होती है उसको भी, क्योंकि इंजन अब डीजल मांग रहा है तो देख लेते हैं, डीजल पेट्रोल के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं।